Class 8. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Supplementary reader. It so happened. Lesson number 4. The treasure within. Page number 26. Line number 5. I used to be interested in games. Means I took interest in games. I used to take interest in games. Running around, playing jokes. प्ले जो मजाक करना, प्ले जोक से होता मजाक करना, एंड प्रैंक्स शरारत, on others. This meaning prank, foolish trick, foolish trick. I would copy भी नकल करना in class during exam times. बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम्स में कॉपी करते हैं, नकल करते हैं. I would try to get hold of. To get hold of का meaning आपको शायद लिखा है the visual guide. The examination paper that had been prepared and studied, as I could not remember things that had been taught to me in class. However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. That was the turning point. When I approached my 11th standard, जब मैं 11th standard के नजदीक पहुंचा, तो the principal called me and said, "Look here, listen attentively, ध्यान से सुनो." Look here meaning listen, L-I-S-T-E-N, attentively, A-T-T-E-N-T-I-V-E-L-Y. Listen attentively, son. ध्यान से सुनो बेटा. But you never studied. I have taken care of you till today or tak. Till means tak. Till today or tak. Now I can no longer, no more take care of you. So you do it yourself. He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up. To bring you up means to raise you. To bring you up means to raise you. तुम्हारा पालन पोषण करने में, bring up means bring someone up. किसी का पालन पोषण करना. And paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. Rise to the occasion means accept the challenge. Rise to
the occasion means accept the challenge. Accept the challenge. Rise to the occasion. Now you should rise to the occasion and study. I used to be a very good sportsman. I used to be a very good player. I had been the senior champion for so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game. हर गेम खेला करता था. यूज टू प्ले, वुड प्ले, खेला करता था. बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड. स्टेप आउट, पैर रखना, खेलना तो दूर रहा, फील्ड में पैर भी नहीं रखा. I would go for prayers, would go used to go. Would go with used to go for prayer, and all I would do was eat and study. I forgot the games completely. Now I had just two hours to take refreshment, lunch, supper, dinner, and study. I normally used to copy and pass. Generally, नकल करता था, पास हो जाता था. But I realized that once in SSC, I could not do that. कि जब मुझे SSC को एग्जाम देना होगा तो उसमें I could not do that, means I could not copy and pass. तो उस एग्जाम को मैं नकल करके पास नहीं कर सकता. When I got second class, दिया एग्जाम, second class पास हुआ, 50% in my SSC. तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि son, consider yourself, consider me think yourself as having got a distinction. तुम ये सोचो कि तुम सेकेंड क्लास नहीं पास हुए, तुमको डिस्टिंक्शन मिला है. से 75% मार्क्स मिलते हैं तो डिस्टिंक्शन कहा जाता है. कहीं सेकेंड क्लास, कहीं पे 45 है, कहीं पे 48 है, कहीं 50 है. और फर्स्ट क्लास का मतलब 60% और डिस्टिंक्शन का मतलब 75%. कहा तुम ये समझो, तुम ये जानो कि तुम डिस्टिंक्शन पाए हो. दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. See, as far as my things are concerned, I can't remember. As far as my things का मतलब means affairs in general. Things means affairs in general. और पूरे की मीनिंग बॉटम में विन है. as far as my things are concerned.
Perhaps he is referring to matters other than coarse materials and their details. I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. याद करने के लिए मुझे जरूरी है कि मैं उन चीज़ों को फोटोग्राफ के रूप में देखूं, तो मुझे तुरंत याद हो जाता है. I read a book and I can remember the matter as a photograph. और उस बुक में जो मैटर है उसको फोटोग्राफ में याद रखता हूँ, बट नॉट टू माई माइंड, लेकिन माइंड के द्वारा नहीं. That is all works. इसी तरह मेरा वर्क करता है, इसलिए मेरा माइंड वर्क करता है. When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up? Pull up means write down scold. Pull up means scold, meaning a rebuke. और एक मीनिंग है चाइल्ड, CHILD. और एक मीनिंग है टेल ऑफ, TELL. स्कूल. Did the teacher pull you up and how did you feel? I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in planes that I could receive a caning every week. कैनिंग छड़ी के द्वारा पिटाई. When you knew that you had incurred the wrath of your teacher. The meaning for bottom में है, incurred the wrath of your teacher, made your teacher furious. Wrath means violent anger. Incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly. When you knew you would get a cane, beating by cane, punishment. Caning is punishment. Caning is beating by cane. What's the state of your mind? State of mind? Just lift up the hand and they will cane. हाथ उठाओ, टीचर cane करेंगे. He do not badly. And then I would have to forget about it because I would want to go on. You never felt insecure or threatened, assured, insecure. Secure का opposite है insecure. I was just interested in playing and nothing else. और इसके अलावा कुछ.
I was most interested in funny pranks. Funny pranks, page number 26 के line number 6 में भी है pranks, meaning of it. One day I did not went to study, so I created a distraction. Distraction means recreation. Meaning given है bottom में something amusing and pleasurable. So I created a distraction. For 1 whole hour we played Chor Police. अब जब स्टडी करने का पढ़ने लिखने का मन नहीं करता था तो मैं कोई प्लानिंग कर लेता था खेल का, मनोरंजन का. रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन. So one day I did not want to study, so I created a distraction. For 1 whole hour we played Chor Police. और पूरे 1 घंटे हम लोग चोर पुलिस वाला खेल खेलते रहे. Every Saturday we were allowed, we were permitted, PERMITTED, we were allowed to go into town to see a movie, picture, cinema. So what I would do was have no lunch. तो क्या करता था, लंच नहीं लेता था, and collect money from 40-50 students and run, और 40-50 40-50 छात्रों से कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था मनी, पैसा, and run, दौड़ के जाता था and buy the tickets. I used to be the leader of gang. Gang means group, GROUP. We would have gang fights. हम लोग ग्रुप फाइट्स का इंजॉय करते थे. And plan strategies, meaning given a strategies, methods of winning fights. कैसे फाइट्स में विन ओवर किया जाए इसके लिए स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते थे, योजनाएं बनाते थे. These things used to interest me more than any academics. Academics की मीनिंग गिवन है एजुकेशनल मैटर्स. दूसरी मीनिंग आप लिख सकते हैं उसे नीचे बॉटम में. एकेडमिक की मीनिंग बुकिश नॉलेज. बुकिश नॉलेज, तो बुकिश नॉलेज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था. ऐसी चीज़ें मुझे ज़्यादा, ऐसी चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता. पेज नंबर 28. Students used to book my textbooks for the following year. बुक की मीनिंग गिवन है, आपको टू बाई इन एडवांस. तो दूसरी मीनिंग रिजर्व. मेरी टेक्स्ट बुक को एडवांस में भी बुक कर लेते थे छात्र लोग. जानते थे कि हमारी बुक जैसी थी वैसी रहेगी.
because they were almost brand new. Brand new means quite new. Q-U-I-T, quite new, very well. Second report. He stumbled on architecture. Because he knew little French and less German. He was offbeat. Offbeat meaning given English में new और meaning new. Offbeat, new. दूसरी मीनिंग ऑफबीट असाधारण. प्रैंक की मीनिंग दिखाई चुका हूँ आपको शरारत. दैट इज प्लेड ऑन अदर्स. व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक. कॉलिंग की मीनिंग गिवन है वर्क और वोकेशन और चॉइस. हिंदी मीनिंग अपनी पसंद का कार्य. अपनी पसंद का कार्य. तो फिर पीछे देखने की जरूरत नहीं. हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? वास्तु विज्ञान आर्किटेक्चर. वास्तु विज्ञान दूसरी मीनिंग है भवन निर्माण कला. भवन निर्माण कला. In the college for architecture, nobody who had got below 80-85% was allowed to enter. आर्किटेक्चर में प्रवेश के लिए जरूरी था कि 80-85% मार्क्स मिले उसके पहले के एग्जाम में. I wanted to join the army. आर्मी में जाना चाहता था. I got my admission letter. एडमिशन का लेटर भी मिल गया मुझको. बट माई aunt tore it up. मेरी आंट ने इसको चीर के फेंक दिया. Then I decided that I wanted to join the police force. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊँगा. माई मदर से मेरी मदर ने कहा कि डोंट ज्वाइन द पुलिस. पुलिस फोर्स मत जाओ, मत जाओ. जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. तुम अपना पहले ग्रेजुएशन करो. तो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. तो मैं बॉम्बे की जय हिंद कॉलेज में गया बीए में एडमिशन के लिए. देयर आई वर आइदर टू टेक फ्रेंच और जर्मन. वहाँ मुझे दो में एक सब्जेक्ट ऑफर करना था, या फ्रेंच या जर्मन. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. कहते कि 7 साल से मैं पढ़ता रहा हूँ फ्रेंच. आई डिड नॉट नो इवन वर्ड्स ऑफ फ्रेंच. लेकिन मैं फ्रेंच के कोई वर्ड्स भी नहीं जानता हूँ.
सो आई टुक जर्मन। इसलिए मैंने जर्मन लिया क्योंकि फ्रेंच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और फिर थोड़े दिन में जर्मन टीचर जो थे उनकी डेथ हो गई। तो द कॉलेज टोल्ड मी, I was told by the college that I could change the college or take it, कि मैं चाहूँ तो कॉलेज चेंज करूँ, दूसरे कॉलेज में चला जाऊँ और या तो फिर फ्रेंच करूँ, क्योंकि जर्मन टीचर दूसरा अवेलेबल नहीं है, तो फिर तुम्हें फ्रेंच पढ़ना है। Now who would give me admission in another college? और ये भी प्रश्न था कि दूसरे किसी कॉलेज में मुझे कोई एडमिशन ही क्यों देगा। Who would give me admission means no one would give me admission. So I had got admission to Jai Hind by influence. Jai Hind कॉलेज में मैंने एडमिशन पाया था शोर सिफारिश के द्वारा, इन्फ्लुएंस के द्वारा, प्रभाव का इस्तेमाल करके एडमिशन मुझको मिला था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच लूँगा एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, फिर फ्रेंच पढ़ना शुरू किया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैं इसको पढ़ता था अपनी कज़न से। कज़न की 8 मीन्स होती हैं, चचेरा भाई, चचेरा, चचेरी, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन। शी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ। तो मेरी जो कज़न थी वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो मैं जाया करता था आर्किटेक्ट के ऑफिस फ्रेंच को सीखने के लिए। Was it then that you decided you wanted to do architecture? Actually, it all happened quite by chance. ये सब बाई चांस हुआ, मैंने कोई डिसाइड कुछ नहीं किया, मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया कि मुझे आर्किटेक्चर पढ़ना है या क्या पढ़ना है। आर्किटेक्चर तो was matter of chance. It all happened quite by chance. It was all a matter of chance. In the architect's office, architect के office में, I saw somebody drawing a window detail. मैंने किसी को देखा भी, तो मैं पहचानता नहीं था वो कौन थे, लेकिन वो विंडो डिटेल ड्रॉ कर रहे थे, मैंने देखा उनको ड्रॉ करते हुए। अब विंडो डिटेल इज वेरी एडवांस टाइम, एडवांस मीन हाई क्लास। विंडो डिटेल में डिटेल ऑफ अ विंडो, विंडो डिटेल में डिटेल ऑफ अ विंडो। अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस लाइन, और विंडो डिटेल ही वो ड्रॉ कर रहे हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने देखा और मैंने उनसे कहा कि हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, का जो ड्राइंग आप बना रहे हैं रॉन्ग है, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, और जो विंडो आपने बनाया है ये खुलेगा ही। ही देन हैड अ वेट विद मी, फिर उसने मुझसे बाजी लगा ली। हैव अ बेट, हैड अ बेट, बाजी लगाया। एंड लेटर ही फाउंड, और बाद में देखा, उसने पाया दैट इंडीड ही ड्राइंग वाज रॉन्ग, कि सचमुच, इंडीड मीन्स सचमुच, कि सचमुच उसकी जो ड्राइंग थी वो रॉन्ग। माई कजन सरप्राइज, मेरे कजन के जो हस्बैंड थे वो सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे। आदमी टू ड्रॉ अप स्पेसिफिक थिंग्स, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स ड्रॉ करने के लिए दिया उन्होंने। स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर।
विच आई इमीडिएटली डिड, और जो मैंने तुरंत कर दिया, तुरंत बना दिया। He asked me to design a house. तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाउस का स्केच बनाने को, पैटर्न बनाने को, खाका खींचने को। He asked me to design a house. And I designed a house, और मैंने हाउस को डिजाइन किया। After that he told me to drop everything and join architecture. उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि to drop means to give up, दूसरी मीनिंग टू लीव, LEAV, कहा कि सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। We went to meet the principal of the college. आर्किटेक्चर के कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए हम लोग गए, यानी मैं और मेरी कज़न के हस्बैंड। We went to meet the principal of the college. The principal warned me. प्रिंसिपल ने मुझको चेतावनी दिया कि I will allow you to take part in the entrance exam. मैं तुम्हें अनुमति दूंगा एंट्रेंस एग्जाम में, प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए, बट इफ यू डू नॉट डू वेल, अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें आर्किटेक्चर का कोर्स ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दूँगा। टेस्ट हुआ, आई गॉट एन A+ इन एंट्रेंस एग्जाम, और एंट्रेंस एग्जाम में मुझे A+ मिला। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से इट वॉज ए केक वॉक। केक वॉक मीन्स वेरी इजी, केक वॉक मीन्स वेरी इजी। सब कुछ मेरे लिए बड़ा सरल हो गया, क्योंकि मुझको मिल गया सब्जेक्ट मेरी चॉइस का। आर्किटेक्चर यही तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। बट आई हैड नेवर मेड ए प्लान। मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया था। बट आई न्यू, लेट मी यूज ना, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। लेकिन ये मुझे पता था कि टॉप पर देखने से कोई चीज कैसा दिखती है। आई नेवर नोन व्हाट ए सेक्शन वॉज, मुझको पता नहीं था, मालूम नहीं कि सेक्शन किसको, सेक्शन क्या होता है। But I knew if you cut a plan, what it would look like. प्लान की मीनिंग ले लीजिए, ऊपर भी आया है। A large scale detailed drawing of a floor, a floor of a house, drawing of a floor of a house, the streets of a town, the streets of a town, etc.
done as though, viewed, V-I-E-W-E-D, viewed means seen as viewed from above, viewed from above. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. I took first class first, so जाकर तब मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, मैं क्लास में टॉप करा, और आफ्टर दैट I took first class first throughout. After that, I believe that all this understanding came from what I used to play and do. मैं समझता हूँ कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग, ये सारे नॉलेज आया, अंडरस्टैंडिंग, all this knowledge came from what I used to play, जो मैं खेला करता था, and do और स्कूल के टाइम में जो मैं किया करता था, उसी का पड़ा. I had a friend called Ram Divicha. My friend, we used to have competitions between us for designing boats, guns and ammunition. हम दोनों में कंपटीशन रहता था डिज़ाइन करने का, कोड को डिज़ाइन करने का, कोड मीन्स कासल किला, गन को डिज़ाइन करने का, अम्यूनिशन को डिज़ाइन करने का. अम्यूनिशन मीन्स गोला बारूद आदि, अम्यूनिशन मीन्स गोला बारूद आदि. और हम दोनों डिज़ाइन किया करते थे, ईच ऑफ अस डिज़ाइन समथिंग, कुछ न कुछ नए और कोशिश ये रहती थी कि डिफरेंट है, दोनों का एक दूसरे से अलग रहे. इन स्कूल इन स्कूल when I was in the second or third standard, 2003 में, so one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches mean drawings, उन्होंने देखा मेरे स्केचेस को, मेरे ड्राइंग्स को, एंड टोल्ड मी, मुझको बताया, सी यू आर यूजलेस इन इंग्लिश, देखो तुम और सब चीज में तो यूजलेस हो, बेकार हो, बट योर स्केचेस आर गुड, लेकिन तुम्हारी जो ड्राइंग्स हैं वो फाइन गुड. व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो ना, तो यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो तुम आर्किटेक्ट बनो. आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम, बट शी वॉज राइट. उस टाइम पे तो मैं नहीं जानता था कि मैं क्या बनूंगा, लेकिन वो मेरी टीचर जो थी वो राइट थी, उनका गेस बिल्कुल सही था. लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, बाद में जब मैं आर्किटेक्ट हो गया तो आई वेंट बैक टू मीट हर, तो मैं वापस गया था स्कूल से मिलने के लिए, एंड टेल हर, और उनको ये बताने के लिए कि मैं एक आर्किटेक्ट हो गया. Why do you think you did not like studies? Was it because you tell you could not cope, could not deal with the curriculum? Curriculum is syllabus, S-Y-A-A-B-U-S. और कोप की मीनिंग बॉटम में गिवन है, मैनेज, हैंडल, डील विथ, तीन मीनिंग है, मैनेज विथ, हैंडल विथ, डील. करिकुलम मीन्स सिलेबस. यहाँ पर उसका मतलब है ये बॉटम में मीनिंग मैंने करिकुलम की, स्कूल सब्जेक्ट और डिस्क्राइब कोर्सेज ऑफ स्टडी.
Why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? आज यहीं तक। मंडे को भी इसी को लाइए रीडिंग करने की, रीडिंग कंप्लीट कर दें। क्वेश्चन आंसर अभी नहीं लिखाएंगे।